Okay, so let's start with the first exercise, question number 11. So the question says, I hope I'm audible and the writing pad is also clearly visible to you. Okay, so the question number 11. A shopkeeper buys an article at a discount of 20% on the mark price of rupees 2000. See, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि क्लाइंट A shopkeeper buys an article at discount of 20% on the mark price of 2000. So मतलब जो mark price है वो है 2000. ठीक है. And there is a shopkeeper. शॉपकीपर ने कितने में खरीदा वो प्राइस मैं यहाँ लिखूंगा. ठीक है. तो शॉपकीपर ने कितने में खरीदा है at 20% discount on mark price. ठीक है. तो यहाँ I'll write here discounted value for shopkeeper. If 20% अगर डिस्काउंट मिला है तो मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्टली वी कैन फाइंड द 80%. याद है कि नहीं. 20% अगर 100% किसी भी चीज की वैल्यू है उसमें 20% डिस्काउंट मिल गया तो बचा कितना है 80% बचा है. तो डायरेक्ट 80% ही फाइंड कर लेंगे. So you will get 1600. That means the shopkeeper has bought the article at rupees 1600. Okay. Then shopkeeper offers a discount of 12% on the mark price to his customer. तो shopkeeper ने customer को कितना डिस्काउंट दिया 12% का डिस्काउंट दिया on the mark price. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है the discount is always on the mark price. Okay. So अब customer को 12% डिस्काउंट में मिला है. Okay. So discounted value for customer. Discounted value for customer 12% discount. 12% discount means 100 minus 12. तो कितना होता है 88%. तो 88% of 2000 that is 176 I think. Discounted value is 1760 for customer. तो customer ने कितने में लिया 1760. Now the picture is clear that the shopkeeper bought the article at rupees 1600 and sold it at rupees 1760. ठीक है. अब एकदम clear दिख रहा है सब. So further what is being asked, if the rate of GST is 5%, so GST rate है 5%. ठीक है. GST rate is 5%. And all are interstate transactions. Find the GST collected from the shopkeeper by the government. So shopkeeper ने कितना GST पे किया? That is the question. What is the GST paid by the shopkeeper? ठीक है. So yes, who can tell me the answer? GST paid by the shopkeeper. Yes, Dhruv. Dhruv. Yes, sir. GST paid by shopkeeper क्या होगा? GST paid by shopkeeper 1600. 1600. Yes, Dhruv जल्दी आंसर बोलो, थोड़ा डिस्टर्बेंस है आपके पीछे. एक मिनट. Sir, 5/100 into 5/100 into 1600. 1600. क्वेश्चन क्या है? जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर. शॉपकीपर एक मिडल मैन है.
हाँ तो मिडलमैन जीएसटी किससे पे करता है? मास्टर। फॉर्मूला देखो एक बार। अभी 10 मिनट पहले मैंने फॉर्मूला देखने के लिए बोला, तभी क्या किया था? टीवी देख रहे थे क्या तभी? प्रॉफिट। प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट है शॉपकीपर का? 400। 400 रुपीज प्रॉफिट है शॉपकीपर का। हाँ? यस आयुष। Yes, sir. So the GST paid by shopkeeper will be 5% of profit. That is 160 rupees. 160 rupees. So what is the 5% of 160? 8 rupees. 0 will cancel. 5 ones are, 5 twos are, 2 ones are, 2 eights are. So 8 rupees. So GST paid by the shopkeeper is 8 rupees. कितनी बार ये सेम क्वेश्चन आ चुका है? कितनी बार? Still you are, few students are struggling. I cannot understand. सिर्फ 3 ही तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर या रिटेलर पूछते हैं तो इसका मतलब ये लोग मिडल मैन है, और मिडल मैन जीएसटी प्रॉफिट पे करता है। ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा टाइप का पूछते हैं प्राइस पेड। आधे से ज्यादा 80% क्वेश्चन तो सिर्फ ये दोनों ही है, जीएसटी पेड और प्राइस पेड। जब प्राइस पेड पूछा है तो जो वैल्यू पे उसने खरीदा है प्लस उस पे जीएसटी। सिर्फ 2-3 फॉर्मूला होने के बावजूद भी यू आर स्ट्रगलिंग विद द चैप्टर। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। नेक्स्ट, द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फॉर द आर्टिकल। द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, अमाउंट पेड मतलब प्राइस पेड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर ने कितना प्राइस पे किया है यहाँ पे? हाउ विल वी फाइंड द प्राइस पेड बाय द कस्टमर? चलो फास्ट बताओ मुझे। So the value for the customer on the good article and plus GST. तो कितना वैल्यू है? कितने का कस्टमर? Value 1760 plus 1760. प्लस 5% ऑफ 1760. Yes. ओके, व्हाट इज द आंसर? Last is the amount of tax received by the central government. The amount of tax received by the central government. ठीक है, मतलब टैक्स मतलब जीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी मिला है? किसी के पर्सन का जीएसटी नहीं पूछा है, सीधा गवर्नमेंट का जीएसटी पूछा है, मतलब टोटल जीएसटी पूछा है। ठीक है, अब चाहिए तो वहां पे क्वेश्चन के पास में लिख दो, इट मीन्स टोटल जीएसटी, और टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है। ठीक है, तो द जीएसटी पेड, इसको टोटल जीएसटी समझो, दिस इज टोटल जीएसटी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल दिया है तो रेट को हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, और टोटल जीएसटी क्या होता है? जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। जीएसटी पेड बाय द कस्टमर, तो कस्टमर ने कौन से प्राइस में लिया है? 1760, तो 2.5% ऑफ 1760। आई गेस 44 आंसर होना चाहिए। चेक योर आंसर।
Yes, done all of you. Maintain the speed. We have to complete the exercise today. रीना थोड़ा कैलकुलेशन सुधारो. Okay, next sum. If anyone is left to copy, you can raise your hand or you can message me that it is you are still copying the question. So 12th question, number 12. See, manufacturer sells binoculars for rupees 3750 to the wholesaler. So manufacturer is selling to the wholesaler at 3750. Okay, it is given that he sells it at 3750. Okay, then wholesaler who sells it to the retailer at a profit of 12%. होलसेलर ने रिटेलर को कितने पे बेचा? होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 12% प्रॉफिट में. ठीक है, यहाँ पे 12% का प्रॉफिट हुआ है. मतलब मैं उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? होलसेलर को मिला कितने में है? होलसेलर को मिला है 3750 में और उसने 12% प्रॉफिट किया उसके ऊपर. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं होलसेलर का प्रॉफिट निकाल देता हूँ. व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होलसेलर? 3750 का 12%. करेक्ट. तो कितना प्रॉफिट होता है? 5 2 जा 5 7 जा 35 5 5 जा 2 1 जा 2 6 750 into 6, that is 450. Am I right? That is the profit of wholesaler. ठीक है, अगर ये होलसेलर का प्रॉफिट है तो होलसेलर ने रिटेलर को सेल कितने में किया होगा? I'll write here sale price for wholesaler. If anyone is not able to understand, you can ask me. एकदम क्लियर है सिस्टम. होलसेलर ने 3750 में खरीदा, 12% का प्रॉफिट किया. दिस इज द प्रॉफिट 12%. और प्रॉफिट वो उसमें ऐड कर लेगा, तो वो कितने में बेचेगा? 4200 में. ठीक है, सिंपल. Then further it is said that the retailer sells it to the customer at a profit of 600. तो रिटेलर ने कस्टमर को बेचा at a profit of 600. Okay. So yes, पृथ्वीराज. रिटेलर ने कस्टमर को 600 प्रॉफिट में बेचा, तो कितने में बेचा? मतलब टेल मी द प्राइस. So 4,800. 4,800. करेक्ट. ओके, तो मुझे एक और फर्स्ट आंसर भी बताओ. रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. जीएसटी का रेट है 18%. ठीक है, सो क्या दिया है? एंड ऑल आर इंटरस्टेट. द जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. Yes, GST paid by the wholesaler to the central government. कितना होगा? Yes, Ayush. So can you hear me? Yes. So what GST paid by the wholesaler to Wholesaler to the central government. Two important words here: wholesaler and central government. Yes, so wholesaler का ये GST ना 18 it will be 9. So 9%. 9% because it is central government बोला इसलिए आपने 9% किया. ठीक है. Yes. और wholesaler बोला है तो wholesaler 3750. होलसेलर जीएसटी किस पे करेगा? जीएसटी ऑफ होलसेलर पूछा है. जीएसटी ऑफ होलसेलर 4200. कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप? जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट ना.
सो 1 मिनट। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही आएगा ना यहाँ पे। आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो यहाँ पे? सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो कौन, इधर ये समझ में आ गया 9/100, उसके बाद कौन सा यूज करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। किस चीज में कंफ्यूजन हो रहा है? आपने फॉर्मूला देखे? हाँ सर, फॉर्मूला देखा। हाँ, तो कौन से दो फॉर्मूला है जिसमें होलसेलर का नाम आता है? वो मिडल मैन। हाँ, मिडल मैन। हाँ, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला था प्राइस पेड बाय द, नो सर 1 मिनट, द प्राइस पेड बाय द कस्टमर और द रिटेलर। जो भी है रिटेलर। हाँ ठीक है, तो दो ही फॉर्मूला है, या तो पूछेंगे जीएसटी पेड या तो पूछेंगे प्राइस पेड। सर, जीएसटी पूछेंगे तो ये लिखना है 9/100 तो प्रॉफिट प्रॉफिट पे होता है। के। ठीक है, 9/100 वो तो डिपेंड करेगा सेंट्रल या स्टेट हाँ गवर्नमेंट बोला तो। ठीक है, हाँ बट अगर जीएसटी वर्ड आ गया, जीएसटी, तो प्रॉफिट हाँ, ही आएगा। ओके सर। और अगर प्राइस पेड पूछा तो तो पूरी वैल्यू वैल्यू ऑफ आती गुड, है। तो अच्छा पूरी वैल्यू आती है। ठीक है सर। क्लियर हो रहा है? बाकी सबको भी क्लियर, बाकी सब लोग भी सुन लो अच्छे से। जीएसटी वर्ड आ गया ना, जीएसटी किसी का भी पूछेंगे ना, तो आपको प्रॉफिट पे ही करना है, क्योंकि वो मिडल मैन है। होलसेलर वगैरह मिडल मैन है, उनका ही जीएसटी पूछते हैं। ठीक है, मिडल मैन का जीएसटी प्रॉफिट पे ही होता है। ओके। थैंक यू सर। तो यहाँ पे द प्रॉफिट इज 450। तो 450 का 9%। ठीक है, सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 40.5। नाउ द प्राइस पेड बाय द रिटेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब पूछा है प्राइस पेड, क्लियरली प्राइस पेड वर्ड है यहाँ पे, तो प्राइस पेड का फॉर्मूला आएगा। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चैप्टर है अभी ये। ठीक है, ये सो Yes, sir. क्या आएगा प्राइस पेड So बाय? the price, बोलो sir, बोलो। value plus GST, क्या वैल्यू है रिटेलर की? 4,200 plus 18% of 4,200. वेरी गुड, 18% ऑफ 4,200। ठीक है, सर और वो 40.50 आएगा ना रुपीज है तो। हाँ यस यस, वो यहाँ पे जगह नहीं है मेरे, इसमें फिट नहीं हो रहा है। 4,200 प्लस 756, तो देख लो क्या आंसर आ रहा है। ये आंसर आना चाहिए। अब थर्ड सब क्वेश्चन 3 इज अबाउट द टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी, तो टोटल जीएसटी के लिए क्या फॉर्मूला आता है? और टू स्टेट गवर्नमेंट बोला है। स्टेट गवर्नमेंट बोला है, मतलब रेट को हाफ कर दूंगा मैं। ठीक है, और टोटल जीएसटी मींस जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। ये कस्टमर की वैल्यू पे जीएसटी। कस्टमर की वैल्यू क्या थी? क्या है कस्टमर की वैल्यू? 4,800। ओके, सो व्हाट आंसर विल यू गेट हियर? Yes, Isha, tell me this answer. Price paid by the customer. Unable to hear you, Isha. Heath, Heath Jain. यस सर, हाँ, यस सर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्राइस पेड बाय द कस्टमर ना सर, 4800 प्लस 18/100 प्लस 4800। मल्टीप्लाई बाय 480। यस सर। आंसर क्या आ रहा है? कैलकुलेट किया है? नहीं सर, वही कर रहा हूँ। जल्दी करो। हाँ सर।
करेक्ट करेक्ट क्रिश ईशा ओम करेक्ट मंथन करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन question number 13, I'll just give you the outline because it is the same question. The list price of handbag is 3000. List price मतलब mark price. ठीक है, कितना है 3000 है. ये किसी की प्राइस नहीं होती है, एक अलग से प्राइस होती है. A distributor sells the trader at 20% discount on mark price. So distributor ने बेचा trader को at 20% discount. ठीक है. So the discounted value for trader 20% का डिस्काउंट मिल गया है. 20% का तो मतलब मैं डायरेक्टली 80% फाइंड करूंगा ऑफ 3000. ठीक है, तो 8 3 24. तो आंसर आया 2400. मींस डिस्ट्रीब्यूटर ने ट्रेडर को कितने में सेल किया है 2400. ओके, देन इट इज सेड दैट द ट्रेडर सेल्स इट टू द कस्टमर एट द लिस्ट प्राइस. ट्रेडर ने कस्टमर को लिस्ट प्राइस पे ही बेचा, मतलब 3000 में ही सेल किया क्योंकि 3000 ही हमारी लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है. ओके, तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है. ट्रेडर यहाँ पे मिडल मैन है. ओके, 2400 में खरीदा, 3000 में बेचा, उसने कुछ प्रॉफिट भी किया इसमें. ओके, तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है यू कैन इजीली फाइंड दैट. ठीक है, तो लीव हाफ अ पेज, लीव हाफ अ पेज एंड दैट विल बी होमवर्क फॉर यू. This question will be homework for you. You have to do it on your own. Okay, इतना बना दो फ्लो चार्ट and then leave half page. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, I hope everyone is with me. Question number 40. Now this is a little different question. Okay, जैसे क्वेश्चन हम अभी तक कर रहे हैं वैसा नहीं है. रिटेलर सेल्स अ ग्रेनाइट ब्लॉक फॉर ₹40,000. ठीक है, तो एक रिटेलर है. ओके, ही सेल्स द ग्रेनाइट ब्लॉक एट 40,000 रुपीज. 40,000 में उसने ग्रेनाइट ब्लॉक सेल किया. प्रॉफिट कभी जीरो नहीं होगा. रीजन योर क्वेश्चन इज रॉन्ग. प्रॉफिट कभी जीरो नहीं होता, नहीं तो कोई काम करेगा ही नहीं अगर प्रॉफिट जीरो है तो. सो द रिटेलर सेल्स द ग्रेनाइट ब्लॉक फॉर ₹40,000. द जीएसटी चार्ज इज 12%. तो जीएसटी की रेट है 12%. ठीक है, इसने कितने में बेचा 40,000 में. कितने में खरीदा वो नहीं पता. इफ द रिटेलर पेज अ जीएसटी ऑफ 960 रुपीज. तो उन्होंने जीएसटी ऑलरेडी दे दिया है. कितना जीएसटी है 960 रुपीज. ठीक है, देखो ये डिफरेंट क्वेश्चन है बिकॉज द जीएसटी इज ऑलरेडी गिवन टू यू. द जीएसटी पेज 960 रुपीज टू द गवर्नमेंट. फाइंड द प्राइस पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल इंक्लूडिंग टैक्स. ठीक है, मतलब रिटेलर ने पहले तो हमें निकालना पड़ेगा रिटेलर ने खरीदा कितने में. ओके, सो लेट द प्राइस फॉर रिटेलर बी एक्स. रिटेलर ने लिया कितने में उसको एक्स रखेंगे, फिर उसमें टैक्स भी इंक्लूड कर देंगे. प्राइस पेड बाय रिटेलर इंक्लूडिंग टैक्स हमें निकालना आता है, बट इसके लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि रिटेलर ने लिया कितने में. ठीक है, वही नहीं पता है. ओके, ठीक है. जीएसटी पेड बाय रिटेलर. टेल मी द फॉर्मूला फॉर जीएसटी पेड बाय रिटेलर. जीएसटी पेड बाय रिटेलर, जीएसटी पेड बाय रिटेलर, होलसेलर, कोई भी मिडिल मैन. ठीक है, तो कैसे जीएसटी निकालते हैं उसका. यस क्रिश. Sir, GST percent profit.
जीएसटी परसेंट मतलब 12%, 12/100 इंटू प्रॉफिट। ठीक है, अब इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट से एक्चुअली पहले ये फाइंड करना पड़ेगा एक्स प्राइस। हाँ, एक्स नहीं पता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट। हाँ अच्छा, जीएसटी पेड बाय रिटेलर, ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस सर। करेक्ट ना? जीएसटी 960 960 उसने पे किया, ये ऑलरेडी हमें बोल दिया है, तो यहाँ पे 960 आ जाएगा, बरोबर। यस सर। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटेलर ने खरीदा है एक्स में और बेचा है 40,000 में, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा? प्लीज बताओ, यस सर। बताओ कैसे कैलकुलेट होगा प्रॉफिट? एक्स में खरीदा, 40,000 में बेचा। यस सर, 1 मिनट। 12 8 सर, 1 मिनट। 8 1 0 16 97 8000 equals x। अरे नहीं, मैं आपको आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि रिटेलर ने एक्स में खरीदा और 40,000 में बेचा, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? कैन यू रिपीट? अगर आप कोई चीज 10 रुपए में खरीदते हो और 15 रुपए में बेचते हो, तो आपका प्रॉफिट कितना है? 5 rupees। कैसे फाइंड किया? तो 15 minus 10 तो 15 - 10 तो 40,000 minus x। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि 40,000 माइनस एक्स, ये है उसका प्रॉफिट रिटेलर का। एक्स के टर्म्स में चाहिए था प्रॉफिट, ठीक है, 40,000 माइनस एक्स। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमें आंसर मिलेगा एक्स का। ओके ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ब्रैकेट ओपन मत करो, ये 100 को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है, अपॉन 12 इक्वल्स 40,000 माइनस एक्स। 12 1 जा, 12 8 जा, ये मिलेगा मुझे 8,000 equals 40,000 minus x. When I solve this, I will get x equals 32,000, क्योंकि वो 8,000 आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा राइट साइड में। ओके, so I will get x as तो इसका मतलब x मुझे मिल गया 32,000, इसका मतलब रिटेलर ने कितने में खरीदा है? 32,000, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग मी फाइंड द प्राइस पेड बाय द रिटेलर। तो प्राइस पेड का फॉर्मूला हमारे पास एकदम अच्छे से है, प्राइस पेड बाय रिटेलर क्या होता है? प्राइस पेड बाय रिटेलर 32,000 में खरीदा प्लस उस पे 12% टैक्स, ठीक है। फाइंड दिस वैल्यू। करेक्ट ईशा, करेक्ट रीनव।
make sum. Next sum is also same. Let's try to understand it. The mark price of a computer is 30,000. So the mark price is 30,000. Okay. The rate of GST is 18%. The shopkeeper sells it at the mark price and pays 1080 as GST. एक shopkeeper है. He sells it at mark price. मतलब उसने बेचा 30,000 में. ठीक है. And pays 1080 rupees as GST. So what GST he has paid? 1080 rupees as GST. ठीक है. He has paid the GST as 1080 rupees. कितने में खरीदा? We don't know that. Further, they are asking what is the price including GST paid by the shopkeeper at the time of buying. तो मतलब let the price for shopkeeper be X. ठीक है. तो इसने X प्राइस में खरीदा है. ठीक है. Now what is the formula? GST by shopkeeper. Now GST is a middleman. Sorry, shopkeeper is a middleman. ठीक है. तो उसका GST क्या होगा? 18% of profit. Okay, that is 18% of profit क्या है? 30,000 minus X. ठीक है. GST है 1080 into X into 30,000 minus X. ठीक है. तो 18 1 जा 18 6 जा 6,000 आएगा यहाँ पे. 6,000 equals to 30,000 minus X. So X is 24,000. X मिला 24,000. So that means I have got the value of X as 24,000. Now they are asking me to find the price paid. ठीक है. So price paid by shopkeeper is 24,000 plus 18% of 24,000. Find this value. This answer you should get it as 4320, and when you add them you will get 28320 is your answer. Okay.
Okay. Now 16th question is similar with a little small difference. Okay. So let's see what it is. Question number 16. The mark price of the mobile is 9,000 rupees. Okay. Mark price is 9,000. You have to understand it slowly. The rate of GST is 12%. Okay. Okay. The shopkeeper buys it at discount and sells it to the customer at mark price. See, क्या लिखा है? The shopkeeper buys it at discount. कितना डिस्काउंट है वो नहीं बोला है, ठीक है, बट शॉपकीपर ने डिस्काउंट में खरीदा है और कस्टमर को बेचा मार्क प्राइस में है, एंड सेल्स इट एट द मार्क प्राइस टू द कस्टमर. सेल्स इट एट मार्क प्राइस मतलब 9,000 में सेल किया है कस्टमर को, ठीक है, कितने में खरीदा वो नहीं पता है, बट सेल किया है मार्क प्राइस में. ओके. शॉपकीपर पेज जीएसटी 36, वापस जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी इज 36 रुपीज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. तो जीएसटी 36 रुपीज टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब रेट को हाफ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. 36 रुपीज टू सेंट्रल गवर्नमेंट है. ओके. फाइंड द फॉलोइंग. अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर देयर वाज अ मिस्टेक इन क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के सब क्वेश्चन 1 में वहां पे दिया है फाइंड द टोटल CGST पेड बाय हर ऑन द आइटम्स. तो वो CGST नहीं है, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो GST है खाली, ठीक है. पीछे जो आंसर दिया है ना वो GST के हिसाब से दिया है. ओके. या तो आप पीछे का आंसर चेंज करो या तो आप क्वेश्चन में C को हटा दो, दोनों में से आप एक चीज चेंज कर सकते हो. ये करेक्शन कर लेना. क्वेश्चन नंबर 10 सब क्वेश्चन 1 द टोटल CGST पेड बाय हर ऑन द आइटम्स, तो वो CGST में उसको GST कर दो. ओके, ठीक है. सो हाँ, वी वर ऑन दिस क्वेश्चन. हाँ, 36 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. अब शॉपकीपर, सो लेट द प्राइस फॉर शॉपकीपर, लेट द प्राइस फॉर शॉपकीपर बी X. ठीक है. तो शॉपकीपर ने X में खरीदा है, कोई इसमें पता नहीं हमें कितने में खरीदा है, X में खरीदा है, ठीक है. तो GST बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इस बार बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट है आई विल हाफ, रेट को मैं हाफ कर दूंगा, ठीक है, इनटू शॉपकीपर का प्रॉफिट. हमेशा GST तो प्रॉफिट पे ही होता है, ठीक है, GST तो प्रॉफिट पे ही होता है. तो 6% ऑफ प्रॉफिट. तो GST कितना पे किया है? 36, एंड 6% ऑफ व्हाट इज द प्रॉफिट? 9,000 माइनस X, ठीक है, 9,000 माइनस X. चलो सॉल्व दिस फास्ट. 600 आ रहा है मुझे. Is everyone getting the same answer? ठीक है. दैट मीन्स आई हैव फाउंड दिस वैल्यू नाउ, दैट शॉपकीपर ने खरीदा कितने में है? 8,400. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर. फाइंड द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर. प्राइस पेड बाय शॉपकीपर. ठीक है. शॉपकीपर कितना प्राइस पे करता है? शॉपकीपर पे करता है 8,400 में खरीदा है प्लस 12% ऑफ 8,400. Yes, has everyone completed this first part? फिर मैं second part बताता हूँ. Copy this first part first.
Second part, they are asking that percentage of discount received by shopkeeper. Percentage of discount received by shopkeeper. तो देखो shopkeeper, the mark price कितना था? Mark price था 900. ठीक है. Shopkeeper bought for 8400. तो कितना डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट इज 9000 माइनस 8400. 8400 में खरीदा और मार्क प्राइस था 9000, तो डिस्काउंट कितना मिला? 600 रुपीज का डिस्काउंट मिला. ठीक है. एंड दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंट. तो डिस्काउंट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिस्काउंट परसेंट फाइंड करते हैं जितना डिस्काउंट मिला है अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100. डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100. सिंपल. तो 6000 अपॉन किस वैल्यू पे डिस्काउंट मिला है? मार्क प्राइस मतलब जिस वैल्यू पे डिस्काउंट मिलता है इंटू 100. कैंसिल द जीरोस. 3 3s are 3 20s are. So बस 20 upon 3% या 62 upon 3% is your answer. Next. Question number 70. Question number 70. The wholesaler buys a clock from the manufacturer for rupees 4000. तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर के पास से क्लॉक खरीदी है 4000 में. ठीक है. he marks the price of the clock 25% above the mark price, cost price, sorry. so होलसेलर क्या करता है? 25% प्राइस बढ़ा देता है और वो मार्क प्राइस बनाता है. ठीक है. तो मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस क्या है? 25% अबव 4000. आप समझ रहे हो? होलसेलर ने क्या किया? 25% भाव बढ़ा दिया. ठीक है. 25% प्राइस इंक्रीज कर दिया. होलसेलर हैज इंक्रीज द प्राइस बाय 25%. ठीक है. तो 25% इंक्रीज करेगा तो मतलब मैं क्या करूं यहाँ पे? Yes. Yes, sir. 4000 plus 25 upon 100 into 4000. हाँ, yes, correct. So mark price of the goods is 4000 plus 25% of 4000. ओके. अब यहाँ पे 75% मत कर देना. थोड़ा आप लोगों को सोचना है. जब 25% का डिस्काउंट मिलता है तो प्राइस कम करते हैं तो हम 75% फाइंड करते हैं. यहाँ पे प्राइस को बढ़ा रहे हैं 25% से, तो 75% करना गलत होगा. ओके. प्राइस बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है ना. यहाँ पे डिस्काउंट में प्राइस घटती है, कम होती है.
तो हम 75% फाइंड करते हैं। यहाँ पे तो प्राइस बढ़ रही है, अगर आपको करना है तो आप 125% फाइंड करो तो आपको सही मिलेगा, बट इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। 4000 प्लस 25% का 4000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज होता है, तो आई गेस आंसर विल बी 5000। मतलब होलसेलर ने गुड्स की मार्क प्राइस क्या रखी थी, मार्क प्राइस रखी उसने 5000, therefore the mark price is 5000। this is my first part, I hope everyone has understood। किसी को कुछ डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। सो वापस एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। द होलसेलर बाइज अ क्लॉक फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर रुपीज 4000, ओके, एंड देन ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द क्लॉक 25% हायर, ठीक है। तो 25% उसने प्राइस बढ़ा दी, तो हमने भी 25% बढ़ा दिया, तो प्राइस बढ़ गई, प्राइस हो गई 5000 रुपीज, ओके। सर अब जैसे 12th वाले सम में सर मैन्युफैक्चरर की वैल्यू जिस वैल्यू से उसने सेल किया था और होलसेलर ने जिस वैल्यू से सेल किया था रिटेलर को वो बताया नहीं था, तो सिर्फ प्रॉफिट से बताया था। तो फिर वैसा कर सकते हैं ना, होलसेलर प्रॉफिट जैसे 3750 इंटू 12/100 और फिर प्रॉफिट फाइंड करके। नहीं, अभी तक हमने सर क्वेश्चन को 12th वाले सम। कंप्लीट नहीं किया है। आपको देखो, वो प्रीवियस क्वेश्चन में ना जीएसटी दिया हुआ था आपको, यहाँ पे आपको जीएसटी नहीं दिया है, और हमें सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे ना अगर एक बार, तो हमें क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आगे दिया है द होलसेलर सेल्स इट टू द रिटेलर एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो होलसेलर ने रिटेलर को कितने में बेचा, 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर रिटेलर, होलसेलर ने रिटेलर को 10% डिस्काउंट पे बेचा ऑन द मार्क प्राइस। 10% डिस्काउंट मतलब 10% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 10, 90% फाइन कर लूंगा मैं, ठीक है। 90%, तो 90% ऑफ 5000 कितना होता है, 90% ऑफ 5000 मतलब होलसेलर ने रिटेलर को कितने में बेचा, 4500, ओके। होलसेलर ने बेचा रिटेलर को 4500, ठीक है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, ठीक है। जीएसटी का रेट है 18%, जरूरत पड़ेगी तो उसको यूज करेंगे, ओके। एंड फाइंड द मार्क प्राइस, ये हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, द रिटेलर्स कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब प्राइस पेड बाय द रिटेलर इंक्लूडिंग टैक्स, ये हमें पूछा है, प्राइस पेड बाय द रिटेलर इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। जो प्राइस आप यहाँ पे लिखते हो ना फ्लो चार्ट में, उसमें कभी टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता। ये जो 4500 है ये विदाउट टैक्स वाली प्राइस है, तो उन्होंने बोला है प्राइस पेड बाय द रिटेलर, प्राइस पेड बाय द रिटेलर इंक्लूडिंग टैक्स। तो वो क्या होगा, 4500 प्लस 18% ऑफ 4500। टेल मी द आंसर फॉर दिस। $810 मिल रहा है क्या इसका आंसर? अब थर्ड पार्ट तो एकदम सिंपल है, थर्ड पार्ट तो आपको एकदम अच्छे से आता है। जीएसटी पेड बाय होलसेलर, वही नॉर्मल क्वेश्चन, जीएसटी पेड बाय होलसेलर, जीएसटी पूछा है तो 18%, और होलसेलर है मतलब होलसेलर का प्रॉफिट पे जीएसटी पे करता है, जीएसटी पे पूछा तो प्रॉफिट आता है, हमें पता है। तो 18% ऑफ कितना प्रॉफिट बनाया है होलसेलर ने, 4000 में खरीदा और 4500 में बेच दिया, मीन्स 500 का प्रॉफिट, दैट इज 90 रुपीज।
ओके डन. क्वेश्चन नंबर 17 डन. क्वेश्चन नंबर 18 इज एग्जैक्टली सेम. एकदम सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. सब कुछ सेम है क्वेश्चन में. So I want you to try question number 18 on your own. वहां पे लिख दो same as question number 70. एक एक स्टेप सेम है. It is for practice. ठीक है. सिर्फ in the 18th question, the third part they have given the GST paid by the wholesaler to the state government बोला है. ठीक है. तो बस कल जब वो फाइंड करोगे तो रेट को हाफ कर देगा. वो याद रखना. स्टेट गवर्नमेंट लिखा है ना, उसको अंडरलाइन कर दो तो आपको याद आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तब. ठीक है कि आपको रेट को हाफ करना पड़ता है. वैसे हमने किया है वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी. सो यू कैन डू दैट. ओके. चल क्वेश्चन नंबर 19. Ayush purchased a computer for rupees 28,320 rupees, which included 20% discount on the list price and 18% tax under GST on the remaining price. Find the list price of the computer. मतलब ये थोड़ा सा अभी अलग सा क्वेश्चन है. देखो आयुष है. ठीक है. आयुष ने एक कंप्यूटर परचेज किया जिसकी फाइनल प्राइस बनी है 28,320 रुपीज. ठीक है. और वो किसके बाद ये फाइनल प्राइस बनी है? जो भी प्राइस थी पहले. ठीक है. पहले क्या प्राइस थी? उसकी जो लिस्ट प्राइस जो थी वी डोंट नो. ओके. सो आई विल राइट हियर लेट द लिस्ट प्राइस बी एक्स. ठीक है. कुछ लिस्ट प्राइस थी उसकी. दे सेड उस लिस्ट प्राइस पे उसे 20% डिस्काउंट मिला पहले. ठीक है. डोंट कॉपी, जस्ट लिसन. 20% डिस्काउंट मिला. ओके. एंड देन उस डिस्काउंट के बाद उस पे 18% जीएसटी लगा है. ठीक है. तो जो भी इसकी वैल्यू आई है उस पे 18% जीएसटी लगा है. पहले 20% डिस्काउंट हुआ है उस प्राइस पे और बाद में उस प्राइस पे 18% जीएसटी लगा है. क्वेश्चन समझ में आया? कोई एक प्राइस है. ठीक है. आप लोग ये कॉपी मत करना, मैं ना कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्स नहीं रखने वाला हूँ, मैं इसको चेंज करने वाला हूँ. ठीक है. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक्स रख रहा हूँ कि ये एक प्राइस थी, उस प्राइस पे 20% डिस्काउंट मिला. ठीक है. फिर जो आंसर आया उस प्राइस पे 18% जीएसटी लगा और ये होने के बाद जो वैल्यू बनी दैट वैल्यू इज 28,320 रुपीज. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एनी डाउट इन द क्वेश्चन? नो. ओके. ठीक है. तो हम क्वेश्चन को एक्स से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक्स से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके. जैसे समझो अगर एक 100 रुपीज की चीज है. ओके. मैं खरीदने गया, मुझे 20% डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हो गई 80 रुपीज की. फिर मुझे उस पर 18% जीएसटी पे करना है. तो मैंने 18% जीएसटी पे किया.
18 8 108, तो मैंने उस 108 में आइटम को खरीदा। तो क्वेश्चन में मुझे ये 108 दे दिया है और बोला है कि बताओ आइटम खरीदी कितने पे थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 108 दे दिया है। ओके, ये प्राइस आपको दे दी है, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक्स से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लिखेंगे लेट द लिस्ट प्राइस बी 100, लेट द लिस्ट प्राइस बी 100। ओके, इजी हो जाएगा 100 से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो 100 पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा पहले। ओके, सो द डिस्काउंटेड वैल्यू, आई विल राइट हियर द डिस्काउंटेड वैल्यू विल बी 20% डिस्काउंट मिलना मतलब मैं क्या फाइंड करूं। ठीक है, आप 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, 10,000 1 लाख जो लेना है ले सकते हो। हमने अज्यूम किया है, लेट लिखा है यहाँ पे, मतलब आपकी इच्छा से जो वैल्यू लेना है आप ले सकते हो। 100 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो मैंने फाइंड किया, मुझे डिस्काउंटेड वैल्यू मिली 80 रुपीज़, मतलब मैंने एक स्टेप कर दिया, मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, 20% डिस्काउंट के बाद मुझे 18% जीएसटी लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी कितना होगा, 80% प्लस, अच्छा रेट क्या दिया है जीएसटी का, रेट क्या है, 18% है। अच्छा हाँ, लिखा है ना यहाँ पे 18% है। सो 18% ऑफ 80, तो 18 8 जा 144 आई थिंक अपॉन 10, तो 14.80 प्लस 14.4, जस्ट चेक दिस। वन 144 डिवाइड बाई 10, 14.4, so the value will be 94.4। मतलब जो चीज 100 रुपीज की थी उस पर जब 20% डिस्काउंट लगा और फिर उस पर 18% जीएसटी हुआ, तो फाइनल अमाउंट क्या मिला, 94.4। ठीक है, 94.4। ओके, लाइट ऑन करो। ओके, सो 94.4 है। अब हम करेंगे यूनिटरी मेथड। यू नो यूनिटरी मेथड, कि 100 रुपीज की चीज 94.4 हो गई, तो x विल बिकम, कौन सी वैल्यू थी जो फाइनली बन जाएगी 28,320। आर यू गेटिंग, जो 100 रुपीज की चीज थी वो डिस्काउंट और जीएसटी के बाद 94.4 हो गई, तो कौन सी वैल्यू होगी x विच विल बिकम 28,320, बिकॉज ये जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी थी, दिस इज ऑल्सो आफ्टर डिस्काउंट एंड जीएसटी, आफ्टर डिस्काउंट एंड जीएसटी वाली प्राइस है। ठीक है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, do the calculation carefully। आई गेस ये 944 जो है, पहले इसका पॉइंट हटा दो ऊपर 10 मल्टीप्लाई करके। नाउ दिस 944 आई थिंक विल डायरेक्टली डिवाइड दिस 2832, 944 इंटू 3 करके देखो, 27 28, 3 जा आ रहा है सीधा, 1 जा 3 जा, तो 3 के आगे 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4, so this is my answer for x, therefore the list price is x। फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, therefore the list price is 330,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 एक बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है जो यहाँ पे लास्ट में दे दिया है, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो एक मैं शॉर्ट में आपको डिस्कस कर देता हूँ क्या क्वेश्चन है। कुणाल परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 5% वाज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है 42,000, ठीक है, और उसको डिस्काउंट कितना मिला है 5%, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। सो 5% का डिस्काउंट मिल रहा है जीएसटी पे, 5% का डिस्काउंट। तो कितना सिंपल है यहाँ पे, डिस्काउंटेड वैल्यू, discounted value will be 95% of 42,000, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। What is the answer you are getting? 42 into 95 is this, दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, एक और आ जाएगा। तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। तो कुणाल ने कितने में परचेज किया है वॉशिंग मशीन को, 39,900, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस पेड बाय कुणाल। प्राइस पेड क्या होता है, 3990 प्लस 18% ऑफ 3990, ओके, दिस इज द प्राइस पेड। बेसिक क्वेश्चन है ये एकदम। एंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST shown in the tax invoice. So CGST और SGST पूछा है, CGST और SGST। सेकेंड, CGST बाय कुणाल। CGST क्या होगा और SGST क्या होगा, GST की वैल्यूज को हम हाफ करेंगे, 18% है उसका 9% 9% करेंगे, ठीक है। तो 9% ऑफ 39,900, ठीक है। एंड SGST के लिए SGST बाय कुणाल इज 9% ऑफ 3990, दोनों बार करके दिखाना पड़ेगा, विल हैव टू डू इट। दिस इज माय आंसर। Done. So we have completed question number 20. Let's do question number 21. I'll erase this. Question number 24 will be homework. Simple question है। And question number 23 will also be homework. होमवर्क इसीलिए है क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने 15, 16, 17 ये क्वेश्चन जो किए थे, 12, 13, 14, आज जिससे हमने स्टार्ट किया था जिन क्वेश्चन से, 12, 13, 14 एकदम बेसिक क्वेश्चन। GST paid by dealer, total tax received by the central government, price paid by the customer, very simple question. Okay, so this will be homework. Now two questions are left, 21 and 22.
Question number 21. SGST on an AC is 14%. SGST on AC is 14%. ठीक है, SGST अगर 14% है, so therefore the GST will be 28% because SGST is half of GST. So GST is 28%. Okay. Then they are saying the price of the AC including GST is 57600. Okay. So price including GST is 57600. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी. ये हमने ऑलरेडी कर लिया. रेट ऑफ जीएसटी इज 14 into 2, 28%. कोई भी डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड. ओके, सिंपल था. हाफ रेट अगर 14 है तो डबल विल बी द फुल रेट, दैट इज 28%. ओके, देन द प्राइस ऑफ द एसी बिफोर जीएसटी. प्राइस बिफोर जीएसटी, जीएसटी के बाद ये प्राइस है. ठीक है, तो प्राइस बिफोर जीएसटी को एक्स ले लेते हैं. ओके, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी हम ढूंढते कैसे हैं? प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कैसे होता है? जो प्राइस है पहले प्लस उस पे 28%. यही होता है ना. प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी होता क्या है? जो प्राइस है उस पे जीएसटी लगाते हैं, जो भी रेट होगा उससे. Okay, now उन्होंने price including GST, they have already told us the price including GST, that is 57600. So we have to find X. Any doubts here? जो मैंने लिखा है उसमें. If any doubts, if any confusion, ask me. No doubt. Okay. So now I'll take LCM here. So price before GST is 45,000. Price before GST is 45,000. अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी पूछा है. बहुत ही सिंपल अमाउंट ऑफ जीएसटी. प्राइस जीएसटी के बाद प्राइस थी 57600 और जीएसटी के पहले प्राइस थी 545,000.
जीएसटी लगने के बाद ये प्राइस थी और जीएसटी लगने के पहले ये प्राइस थी, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, या फिर अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगे तो आप अमाउंट ऑफ जीएसटी ऐसे भी निकाल सकते हो। 45,000 की चीज है ना, तो 45,000 पे आप 28% फाइंड कर लो। बोथ वेज आंसर रिमेन्स द सेम। बोथ वेज, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू बोथ द वेज कि जीएसटी तो एक ही बात है, कैसे भी जीएसटी निकाल सकते हैं। यू कैन कॉपी बोथ द वेज इफ यू वांट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Last question for today, question number 22. The list price of an article is 588. A customer bargains with the shopkeeper to reduce the price so that she can pay 588 inclusive of GST. किसी को समझ में आया क्वेश्चन? ये लिस्ट प्राइस है, समझो ये एक आर्टिकल है, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ सैनिटाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, और इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 588। ओके, अब जब आप इसे खरीदने जाओगे और अगर आप बिल लोगे, ठीक है, तो इसकी प्राइस क्या होगी, 588 प्लस जीएसटी, और आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बट जो कस्टमर है, यहाँ पे जो कस्टमर है वो क्या कह रहा है कि मुझे इसकी प्राइस कम करके दो, ठीक है। प्राइस को इतनी कम करो कि उस पे जीएसटी लगने के बाद टोटल वैल्यू हो 588। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? वो क्या कह रहा है कि मैं 588 पे नहीं करूंगा क्योंकि 588 के ऊपर और जीएसटी लगेगा, फिर शायद प्राइस 700 तक पहुंच जाए। नहीं, आप प्राइस को कम करो सो दैट उस पे जीएसटी लगने के बाद द टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी बिकम्स 588। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एनी डाउट? सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे, क्वेश्चन तो समझ में आया? Just send a yes to me in the chat box. So for the customer, wait, let the reduced price be X.
let the reduced price be X. So the price including GST will be 588. कस्टमर ने क्या डिमांड किया है कि जीएसटी इंक्लूड होने के बाद प्राइस होनी चाहिए 588. ओके, जीएसटी इंक्लूड होने के बाद प्राइस होनी चाहिए 588. तो मुझे पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. जब प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी मुझे दिया है, ठीक है, तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इक्वल्स जो पहले की प्राइस है प्लस उस पे हम टैक्स लगाते हैं. व्हाट इज द टैक्स गिवन इन द क्वेश्चन? 12%. जो भी रिड्यूस्ड प्राइस है उस पे जब 12% टैक्स लगेगा, दिस इज द रिड्यूस्ड प्राइस, उस पे जब 12% टैक्स लगेगा तो मुझे मिलेगा प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी. करेक्ट. जो रिड्यूस्ड प्राइस है उस पे हमने टैक्स लगाया, तो प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी इज 588 एंड आई विल हैव टू सॉल्व दिस. तो एलसीएम लेंगे 100x प्लस 12x अपॉन 100, तो 1112x अपॉन 100. I am getting the answer as 525. Is everyone getting the same? तो इसका मतलब जो प्राइस 588 थी, ठीक है, कस्टमर ने उसे बार्गेन करके 525 पे लेके आया. कस्टमर ने क्या किया? उसे बार्गेन किया और 525 पे लेके आया. ठीक है, फिर इसके अंदर जब जीएसटी ऐड होती है तो टोटल प्राइस बन जाता है 588 जो उसने पे किया. ठीक है, अगर वो बार्गेन नहीं करता तो उसे इस 588 के प्राइस के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है. ठीक है, जीएसटी चेंज नहीं होगा, जीएसटी तो देना ही पड़ता है कस्टमर को. देयर इज नो एक्सेप्शन टू जीएसटी टू टैक्स, बट जो प्राइस शॉपकीपर डिटरमाइन करता है उस पे कस्टमर बार्गेन कर सकता है. ओके, तो बात समझ में आ रही है? So this is the reduced price. So the reduced price is 525. Okay, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द रिडक्शन इन प्राइस, मतलब कितना रिडक्शन हुआ. तो कितना रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन इज 588 माइनस 525. करेक्ट, करेक्ट अनिश रीना, करेक्ट. 588 minus 525 that is 63 रुपीस रिड्यूस हुआ है. मतलब 63 का उसने बार्गेनिंग किया, डिस्काउंट ले लिया, समझ लो आप. 63 रुपीस का डिस्काउंट ले लिया है. ओके, so I hope you have understood the sum. If any doubts you can raise your hand. ये स्टार्ट था क्वेश्चन का and this was the second part. Okay, with this we have completed the GST chapter. Okay.